wait till uh, our viewers join. Hello. Hello, Rakhi ma'am, you're already there. Hi, Dipanjali. Thank you for joining in. Okay, let's just start. Namaste, I am Saloni Bhakri, Mrs. India Pride of Nation 2019. और आप सबका स्वागत है फन स्क्रिप्टेड विद सलोनी पर। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्तियों से मिलने जा रही हूँ। एक्चुअली एक नहीं, दो बहुत ही फेमस और साथ में जिन्होंने बहुत अपना मकाम अपने आप बनाया है फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में। So I am super excited to ask them questions and know the insight of everything कि क्या कैसे होता है। तो I'm sure you all will have actually learn a lot of things because वो मतलब फ़ोन पे भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह से कैसे एक्टिंग करनी चाहिए या किस रोल में आप किस तरह से आप क्या ऐसे बारीकी बताते हैं वो जिससे आई एम श्योर आपका जो एक्टिंग का करियर है वो और फ्लरिश करेगा और साथ में यू विल लर्न अ लॉट अबाउट acting and especially since he's theater guru, both of them in fact, Rakhi ma'am and Manav sir both are theater guru. So let's just they're already here like always on time and punctual, so which is one most important thing in every industry. So let's just join in and then probably we'll ask questions. Hello everyone. Hi Sajid. Hi Pankuri, how are you? Hi Gyan Singh ji. Wow. Hello ma'am. Hi, Saloni. How are you? I'm very well, thank you. It's lovely being here with you. I'm so glad you both of you in fact could make it. Sir को भी मैंने join करवाया है, but I don't know. I think there's some network issue or something. No problem. He'll come अच्छा, downstairs मैं and. what I'll do is I'll just change the camera. 1 second. Yeah. This looks better. So now this is fine. मानव सर को भेज दीजिए यहाँ पे. I'm so glad. Actually, बहुत सारे मुझे messages भी आए थे because of मैंने जब डाला पोस्ट कि आप दोनों आने वाले हैं तो they were so all of them were so excited सोचकर कि चलो we last because उनको पता है कि आप मतलब ऑन स्क्रीन मतलब यहाँ पर भी बता सकते हो कि कैसे क्या करना चाहिए and you can solve their problems. So I'm super excited. So let's just Manav sir join in and then we start. Yes, they're away here. Ma'am, is it possible to do it the other way because questions नहीं पढ़ने में आएंगे ठीक से? Okay, okay. Great, thank you. I'll just change. Yes, please. Thank you so much. गोल चक्कर खा लिया हमने. I think there's an issue with light. If you could Yes, give me yes. light. No problem. You can So, take your time, please. आप कर लीजिए. just Light. yeah. जी. मैं इस तरह. हाँ. अभी हमने जब थोड़ी देर पहले चेक किया था तो प्रॉपर लाइट था. अभी अच्छा, पता नहीं okay. क्या हुआ. अच्छा तब तक आप हेलो बोल दो अपने व्यूअर्स को. आसिफ खान हैज जस्ट जॉइंड इन एंड मेरे दोनों हाँ. बच्चे भी Anyway, एज यूजुअल. आशुतोष हैज जॉइंड इन. हाय स्वाति. या मैम.
अब ऐसे कितनी देर तक पकड़े रहेंगे हम? Well, hi everyone. I hope this is better दिस इज बेटर somehow बट आर because यू कंफर्टेबल बिकॉज 1 घंटे तक हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं बट आर यू होल्डिंग इट इन योर हैंड I'm just holding any. It's That's okay. okay. It's okay. It's okay. श्योर हम यू कैन बनाए इट्स Yeah. ओके इफ यू वांट टू गेट अ टेबल और समथिंग Nahin, okay. It's okay. I think ma'am is helping. It's ओके all because thanks to Corona ओ आई नो कि सारा काम खुद ही करना पड़ता है. बट मुझे बहुत खुशी हो रही है कोरोना की वजह से आप सबके पास टाइम है एंड आई एम एबल टू टॉक टू यू ऑल और सबको बहुत फायदे हो रहे हैं इंस्पायर हो रहे हैं सब हमारी बातों से तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी बट आई स्टिल होप कोरोना जल्दी खत्म हो जाए काम Yeah, कर करके तो मैं भी yes. बहुत थक गई हूँ करके Right. So now दिस we are इट्स on. बेटर यस ग्रेट 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 ओके ओके Because this is our first time on Instagram. Live. I know that. I know, Right. viewers, please, I just want to tell you all that राखी मैम और माना सर दोनों Instagram लाइव नहीं करते हैं. And just because of, you know, huge request और थोड़ी सी अप्रोच लगाने की वजह से I am able to get both of them together on a single frame. So I'm very, very happy. Hello, Manu. राखी मैम आपको मनु जी हेलो बोल रहे हैं. Hello, Manu. How are you? Yeah. ओके सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. आप पहले तो अब बताइए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिख लिए हैं मैंने तो वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी. पहले आप मुझे ये बताइए कि हाउ डिड यू, मैं नॉर्मली सबसे ही पूछती हूँ चीज तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ डिड यू एक्चुअली गेट इनटू एक्टिंग और थिएटर बिकॉज आप इतने सालों से 20 साल हो चुके हैं आपको राइट 2 decades into in this industry और इतना सारा आपने काम किया है तो कैसे मतलब उस टाइम पे तो आई एम श्योर इतना ज्यादा नहीं होता था सब लोग को एक्टिंग और बहुत काम मतलब कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे तो अभी तो बहुत हमको मिल गए हैं कैसे जाना है कहाँ जाना है करके बट उस टाइम पे आपने कैसे डिसाइड किया और कैसे आप ने डिसाइड किया कि आप आ जाएंगे एक्टिंग करेंगे. एक 99 में या 98 में शायद एक यात्री की वर्कशॉप हो रही थी, थिएटर वर्कशॉप, और उसमें थिएटर फ्रेटर्निटी के महान लोग मतलब जॉय माइकल, भास्कर घोष और सुनीत टंडन जैसे लोग थे, प्रकाश भाटिया सर थे, तो वो उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था इंडिया हैबिटेट सेंटर में. So they were like all icons. कबीर बेदी came out from यात्री ग्रुप और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे जो उसमें थे. तो एक वर्कशॉप हो रही थी तो हम लोगों ने उसको ज्वाइन किया और तब हमें पता चला कि यही एक चीज है जो शायद हम करना चाहते हैं लाइफ में. Wow. You working, Okay. you working, we were in corporate world, events में थे हम लोग, लेकिन वो लगा कि थिएटर शायद एक ऐसी चीज है, इतनी लाइव आर्ट है और हर दिन नया दिन होता है यहाँ पर और हर रोज कैरेक्टर्स करने मिलते हैं, नए नए खेल खेलने हैं, तो वो इतना इंस्पायर किया कि फिर हम छोड़ ही नहीं पाए. वाह वाह बस यही चाहिए, यही खुशी दे सकती है हमको. हाँ. बट दैट्स ऑल्सो एक्चुअली ग्रेट क्यों रिकग्नाइज कि आप क्या चाहते हैं करना जिंदगी में. पूरी जिंदगी मोस्टली लोगों की ऐसी बीत जाती है कि अच्छा ये करे कि वो करे, बट एक बार ही जब आप फोकस हैं आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कर लें तो आई एम श्योर यू कैन अचीव इट और आपने तो बहुत ही अच्छे से अचीव किया है. यहाँ पे मैं एक छोटा सा कन्फेशन करना चाहूंगा कि मैं के लिए भटक गया था. अच्छा ओके. अभी कन्फेशन कर रहा हूँ पहली बार किसी के साथ. How sweet, how sweet is that? I joined fashion industry and basically I am trained fashion designer. Wow. Wow. So तो फिर फैशन इंडस्ट्री में चले गए. फिर आई असिस्टेड वन ऑफ ग्रेट डिजाइनर जे वलाया फॉर सम Wow, टाइम. that's amazing. Right, for some time and then again I realized no, मजा नहीं आ रहा I है. back to the theater. तो मैं फिर से राखी के पास आया और हमने कहा तो बेटा यही करना है.
हम नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, पर एक्चुअली वो अच्छी बात है, और आई थिंक रादर देन थिंकिंग लेटर कि शायद मैं ये बेटर कर लेता या वो बेटर कर लेता, कि करके देखो होता है कि नहीं होता, एंड देन यू कम बैक टू योर ओन पैशन। तो आई थिंक उसके बाद तो और कुछ चाहिए ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस मुझे बताओ, फिर मैं आपके ऊपर अपने क्वेश्चंस की वर्षा करूंगी। अच्छा, एक्सपीरियंस लाइक हलवाई को मिठाई बनाने का तरीका बताना पड़ेगा। Anyway, तो बिल्कुल, क्योंकि सब हलवाई नहीं बन सकते। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, यात्री के साथ हमने कुछ काम किया। फिर हम लोग जी। का एक और इससे पहले थिएटर ग्रुप था, न्यू दिल्ली थिएटर करके, वाह। उसके साथ हमने बहुत सारा काम किया। और आई थिंक 2003 we went to Canada and Okay. in theater festival we performed Wow. there, right? So I think वहाँ पे 20-21 countries थे, इट्स काइंड ऑफ ओलंपियाड। जी जी जी। 25 कंट्रीज थे, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ पे हमने परफॉर्म किया, नाटक परफॉर्म किया। इनफैक्ट मैम वहाँ पे जो थी वो बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनी हुई थी। ओह माय गॉड, वाओ, अमेजिंग। राइट। तो उसके बाद फिर 2006 से हमने 5 एलिमेंट्स, जो अभी हमारा करंट जी 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 जी। स्टार्ट किया, एंड व्हिच वाज आवर फर्स्ट प्ले, लाइक आई थिंक गॉडफादर। सीगल एंड गॉडफादर। एंड गॉडफादर के बारे में मैं एक चीज बता दूं, गॉडफादर इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी बेसिकली। अगर आप ओके। जी वेरी गुड नॉवल बाय मारियो जी पुज़ो। जी और जी जी। जितने भी डॉन वाली चीजें रहती हैं वो सबको गॉडफादर बनने का शौक रहता है। तो एक यहाँ पे एक चीज बता दूं, वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड जिन्होंने गॉडफादर को स्टेज पे किया है। वाओ, आई मीन आपने तो पूरे हिंदुस्तान को एक्चुअली प्राउड किया है, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने आप को यू नो टू शो ऑफ एंड टू टेल पीपल कि मैंने मतलब आई हैव अचीव सो मच। आप बुलवा रहे हो। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत जरूरी है एक्चुअली, यू नो, नॉट बिकॉज कि आपकी वाहवाही हो या कुछ, वो तो वैसे भी होगी ही क्योंकि आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट ऑल्सो टू इंस्पायर पीपल, यू नो, क्योंकि स्पेशली कोरोना के टाइम पे सब इतने परेशान है, और ये इंडस्ट्री में आपने देखा ही है, रोज न्यूज ये और वो कुछ क्या क्या सुनने मिलता है। तो इट इज वेरी डिप्रेसिंग, यू नो, कि जैसे आपने बताया कि यू वेंट टू सम अदर फील्ड एंड देन यू केम बैक। सो नॉट दैट कि आप डिप्रेस हुए कि नहीं ये भी नहीं हो रहा और मैंने वो भी छोड़ दिया, पर यू वर लाइक, यू नो, आपने अपने दम पर वापस आप आए और वापस आपने वापस किया, एंड नाउ यू आर हियर, सो हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई एम श्योर पीपल आर सो इंस्पायर्ड बाय यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले सबको हेलो बोलते हैं और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। रविंदर कुहार जी बोल रहे हैं राम राम सबको, राम राम जी। वो आपके स्टूडेंट है आई एम श्योर। रविंदर इज वेरी गुड। जी, मैंने लास्ट लाइव किया था उनके साथ, एंड उन्होंने मुझे सब बताया बहुत कुछ बताया कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही he's a very good guy, very good guy, and Very very yes. handsome. Oh yes, Very- that goes without saying. That goes without saying. So hello Priyanka Bharti, Amol ji, and hello to everyone. Let's just start asking questions. अच्छा, आशुतोष का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। सर, where does India stands when, एक मिनट, सॉरी, गायब हो गया क्वेश्चन। When it comes to theater, because I've Yes, seen very big budget shows shows outside. outside. आपने ब्रॉडवेज में देखे होंगे या जी, बाहर जी। देखे होंगे। जी। देखिए हर जगह का एक अपना कल्चर होता है, और जैसे कहते हैं ना, साड़ी 100 रुपए की भी आ जाती है और साड़ी को आप हजारों में भी खरीद जी, सकते हो। जी। जितना आप डालेंगे उसमें इनपुट डालेंगे, उतना ही वो डिजाइन के बेस पे खूबसूरत बन जाता है। लेकिन इट डिपेंड करता है हर एक डायरेक्टर की अप्रोच पे कि वो किसी प्ले को किस नजरिए से देखता है। अगर उसमें तामझाम चाहिए तो डेफिनेटली तामझाम डाला जा सकता है उसमें, लेकिन जिस जी। तरह के डायरेक्टर्स हम हैं, तो क्योंकि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है
हमारे लिए हमारा जो एक्टर है, हमारा जो स्टूडेंट है, वही स्पेक्टिकल है। हम नहीं चाहते कि हमारी ऑडियंस पीछे कुछ तामझाम देखे, हमारा एक्टर इतना अच्छा परफॉर्म करे कि ऑडियंस ये भूल जाए कि पीछे क्या है, आगे क्या है, और वो एक्टर पे फोकस करे। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होनी चाहिए, इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि दर्शक की नजर इधर उधर जाए ही ना। तो क्लटर नहीं करना है स्टेज को, शो ऑफ नहीं करना है ज्यादा। एक्टर हमारे लिए, हमारा एक्टर स्पेक्टिकल है, आप उसको देखिए। जी, आपने एंड बहुत ही बड़ी बात बोली है ये तो। और एंड सेकंड चीज कि अगर हम वर्ल्ड थिएटर की बात करें तो जी जो कल्चरली जो स्ट्रॉन्ग, जो रिचेस्ट थिएटर है वो एक्चुअली इंडियन थिएटर है। जी कि हाँ, इस क्योंकि इतना वास्ट है। जो अगर जो नाट्य शास्त्र है या जो कुछ भी है, तो अगर आप उसके हिसाब से थिएटर करोगे तो इट्स वेरी रिच, वेरी रिच। जैसे मैम ने कहा कि डिपेंड्स, बेसिकली डिपेंड्स ऑन चॉइस, यही चीज है, okay. नहीं? There is another question. He's saying I meant does Indian government helps because I'm regular to theater shows and our artists are amazing. So does Indian government help you to to go out of India and represent India and यस, make a mark? Okay. जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग जब कनाडा गए थे तो यस, आई थिंक ओएनजीसी ONGC and helped us and Air India ICCR. and Air India. So there is a organization, there is Indian government's organization which is ICCR. ठीक है, Okay. तो उसके साथ आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो इंटरनेशनली अगर आप कहीं शो करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो हेल्प करते They हैं, help you. Okay. हेल्प करते हैं। हम Okay. लोग आई थिंक हम लोगों का क्रू कुछ 15 लोगों का था, तो उन्होंने Okay. कंप्लीट पूरा सारा एयर टिकट एंड ऑल दे Wow, that's amazing. That's great. अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी को एक्टिंग फील्ड में जाना है तो आपको क्या लगता है कि उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दे शुड फोकस ऑन एक्टिंग फील्ड में अगर जाना है किसी को? सबसे पहले तो अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। ये नहीं है कि शीशे में देखी अपनी शक्ल और आपने तय कर लिया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं। जिस तरह से कोई दूसरा प्रोफेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो बीइंग अ बिजनेसमैन हो, तो हम उसके लिए एक पढ़ाई करते हैं। तो जी उसी जी तरह से एक तरह का बहुत लोग डाउट करते हैं इसमें कि भाई हम तो बॉर्न एक्टर हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बॉर्न एक्टर हो और आपको चांस मिल जाए, लेकिन अगर आपने जी बहुत दूर तक जाना है, अगर आप आगे तक काम करते रहना चाहते हैं और सीखते रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और या फिर आप साथ साथ में आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे जी इंस्टीट्यूट, लेकिन रिलायबल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आप कौन वगैरह लोगों के चक्कर में ना आ जाएं कि वो आपसे जी कहें कि हम आपको एक्टिंग सिखा देंगे और आपसे लाखों रुपए हड़प लें। तो जी जी जेन्युइन जगह पे जाइए और सीखने की कोशिश करिए। काम करते रहिए, अपना सीखते रहिए, काम अपने आप आएगा आपके पास। यहाँ बिल्कुल, पे टैलेंट होगा तो। इस आंसर को मैं क्वेश्चन में लेता हूँ। जैसे मैंने जी भी बोला कि जी जब हम डॉक्टर बनते हैं या जब हम इंजीनियर बनते हैं तो आई थिंक एक जो डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं जब वो दे स्टार्ट अर्निंग। जी ठीक है, और जब आप एक्टर बनते हो तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस 1 साल की ट्रेनिंग काफी होगी, 5 साल की ट्रेनिंग काफी होगी। और जबकि आप अगर एक अच्छे एक्टर की अर्निंग देखोगे तो इट इज अनलिमिटेड। एक ट्रू तो ग्लैमर और एक जो मॉनिटरी अर्निंग है वो वेरी अनलिमिटेड। आप जी उस क्राफ्ट पे काम नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव योर लाइफ। तब कैसे सक्सेस नहीं मिलेगी ये हम देखते हैं। बिल्कुल सक्सेस जी जी बिल्कुल, यू हैव टू गिव योर 100%। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके बाद पूरा अच्छे से अपना ऑब्वियसली, 100% दीजिए। ऑब्वियसली कम से कम पढ़ाई, एटलीस्ट ग्रेजुएशन। आपका ताकि आप लुकआउट ही अगर चेंज हो जाता है पढ़ाई के बाद। इफ यू लर्न हाँ समथिंग, जिस हाँ तरह से आप चीजों को देखते हैं वो बहुत अलग होता है। करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं तो मैंने देखा है आजकल छोटे छोटे बच्चे
दे आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन स्टडीज, बस वो जाते भी नहीं है स्कूल और अटेंडेंस लगवा दी एंड दे जस्ट वांट टू गेट इनटू एक्टिंग और स्टफ, पर उनका वो आई डोंट नो समहाउ वो अलग ही हो जाते हैं बच्चे, शायद उनका लुकआउट ही एकदम डिफरेंट हो जाता है। बहुत कम लोग बहुत कम वो बच्चे होते हैं जो ग्राउंडेड भी रहते हैं और साथ में यू नो दे अंडरस्टैंड फेम। सो उसको वो चीज जिसे अगर आप कुछ अपने हासिल करिए, जैसे आप लोग आप इतना बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हैं तब भी यू आर सो ग्राउंडेड, यू नो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेम एंड हाउ इट इज। तो ये आप कैसे लाते हैं इतनी सरलता और इतने अच्छे से, आप कैसे मतलब कैसे होता है ये, क्योंकि दिस इज क्वाइट नेचुरल यू नो कि आपको इतनी अटेंशन मिल रही है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो वो हो ही जाता है हेड हाई, लगता ही है कि मैं तो बस बन गया हूँ हीरो हीरोइन, तो बस जी। अगर समझ में कभी ना आए कि अगर लगे कि हमारे पर लग गए, हम उड़ने लगे हैं ना, तो एक बार अपना एक स्कूल विजिट कर लीजिए, एक बार वहां के टीचरों ने जो अपने कमेंट कीजिए थे ना। आई कम्प्लीटली एग्री टू ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है एक्चुअली, सबको स्कूल जाना चाहिए एक बारी। अपने अपने स्कूल में विजिट कर लो और अपने टीचर के सामने खड़े हो जाओ, वो आपको बता देंगे कि आप कि आप पढ़ भी सकते हैं कि नहीं। वही है कि जब हमारे बच्चे भी जैसे कुछ कोई सीरियल कर लिया या कुछ कर लिया, तो हम उनको ये नहीं कहते हैं कि तूने अच्छा सीरियल कर लिया वेरी गुड, हम कहते हैं सीरियल में तुमने ये गलती करी, राइट, यू डिड दिस रॉन्ग। बेचारे, तो ये वही चीज है। नहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक वो चीज। अच्छा, एक आपके आई थिंक स्टूडेंट का ही मैसेज है, मनु है उनका नाम, 6 मंथ से प्रैक्टिस नहीं की, अब थोड़ा नर्वसनेस हो रही है टू रिज्वाइन करने में, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल हिम? जो 6 महीने से नहीं किया मन्नू, वो अब करना शुरू कर दो, राइट। तो प्रैक्टिस नहीं की तो प्रैक्टिस करो, कूदो, स्विमिंग पूल में कूदो, स्टेज पे कूदो और गलतियां करो और फिर से शुरू हो जाओ, ऐसे पहले। वाओ, सो अमेजिंग, आपके आंसर्स बड़े ही मजेदार है एक्चुअली अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे, तो मुझे लग रहा ही नहीं मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगी आपसे। अच्छा सर और मैडम, हाउ मेनी पीपल कम टू बिकम रियल थिएटर आर्टिस्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल जॉइन थिएटर जस्ट टू गेट सर्टिफाइड एंड जॉइन सीरियल और मूवीज, सो ट्रू एक्चुअली। इट इज वेरी ट्रू इनफैक्ट, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट्स को देखो, अब जैसे मैं बात करूं कि जो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ना, कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, लेकिन वहां पे मैक्सिमम लोग जब उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम अच्छे एक्टर बन पाए, हम एक्टिंग में काम कर पाए, लेकिन एक्टिंग इज जस्ट अ सब्जेक्ट, ट्रू, राइट। तो वो थिएटर का पार्ट, हाँ, वो सिर्फ थिएटर का पार्ट है, ठीक। जी। तो आप अगर आप ओवरऑल कहीं पर भी थिएटर ज्वाइन कर रहे हो या कहीं पर भी आप प्रोफेशनल चीज ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर आप ओवरऑल काम करोगे तो एक्टिंग पे ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट। तो ये है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप थिएटर को इसलिए ज्वाइन कर रहे हो कि आपने फिल्मों में जाना है या सीरियल्स में जाना है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका डेडिकेशन कितना है या आप कितना सीखने चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर थिएटर कर रहे हैं और आपका सब जो है वो मीडिया में जाना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स ओके, वो किसी को सीखने की जगह चाहिए, व्हाई नॉट थिएटर, बस प्रॉब्लम। सो ट्रू। सो आपको क्या लगता है कि कोई भी एक्टिंग कर सकता है कि और या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको, आप जैसे कोई आया आपके पास तो आप देख के आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा कि एक्टिंग करने लायक है भी कि नहीं, तो आप क्या ब्लंटली बोल देते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ? अच्छा एक बात ऐसा होता है जी। अच्छा एक बात आप ही बताओ, आपने जब आप छोटे थे तो मम्मी से झूठ बोला था कि स्कूल नहीं जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बोला था ना? कितनी बार पकड़ा? हमेशा। हमेशा। तो जो पकड़े जाते हैं ना वो अच्छे एक्टर नहीं बनते नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप झूठ बोल रहे हो और आप पकड़े जा रहे हो, तो यानी कि आपको एक्टिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है, राइट।
और अगर आप समझ रही झूठ हूँ बोल मैं। रहे हैं, नहीं, लोग, और आप झूठ बोल रहे हो और आप पकड़े नहीं जा रहे हो, तो आप बॉडी हो, और उसमें आपको और निखार लाने की जरूरत है, तो फिर से आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता। अगर मम्मी के सामने झूठ पकड़े पकड़ेगा, क्योंकि मम्मी के सामने ना कुछ छुपता नहीं है। ठीक सच्ची है, बात है, ये करेक्ट है। तो मैं तो बन मम्मी, सकती फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है कि मम्मी के सामने ना कुछ छुपता नहीं है ना। लेकिन हमने अपनी लाइफ में बहुत बार झूठ, हम सभी झूठ बोलते हैं, जी तो जी हम जी और जी। लोग जाते हैं। तो वही कला है, एक्टिंग इज लाइक इट्स लाइंग, बट इट्स लाइंग ट्रूथफुली। तो टू, ओके, तो नेटवर्क में कुछ इश्यू हो गया। आपके नेटवर्क में आई थिंक थोड़ा सा इश्यू आ रहा है आपका। फ्रीज हो गया है वीडियो। ओके, नाउ इट्स फाइन। अभी ठीक, या यस यस परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो बेसिकली जो झूठे लोग हैं सब अच्छे एक्टर्स हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, खुश हो गए लेकिन होंगे, झूठ, अभी वो उनका गिल्ट गया होगा, भाग गया होगा, सोचोगे वाओ हाँ हम तो बहुत बिल्कुल, एक्टर्स हैं। लेकिन आज झूठ वो बोलो। उनको ट्रेन होना पड़ेगा। क्योंकि अपना बनाया झूठ तो आप बोल सकते हो ना, लेकिन जी जब हम जी आपको जी लाइंस देंगे या जब आप जी। परफॉर्म कर रहे हो, तब वो उसमें सच्चाई दिखनी वो चाहिए। दूसरे का वो झूठ आर्ट कैसे, सीखनी पड़ेगी। हाँ तो वही वो है, सीखना तो है। एनीवन कैन एक्ट बेसिकली। ओके, और ऐसा कुछ एज फैक्टर तो आई एम श्योर इट्स नॉट दैट कि ऐसा तो नहीं जरूरी है कि भाई आपको इतनी एज से शुरू कर देना चाहिए सीखना, या ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, डजंट नहीं, मैटर, इट्स अप टू एजुकेशन एवरीवन मैटर्स। बेसिकली। बट एजुकेशन मैटर्स, बट हाँ एजुकेशन। Education must. Okay, Fardeen Khan. Hello, sir. According to you, which is most difficult of creative art, stage acting or camera acting? This was my question too. ओके, Stage acting स्टेज, is more difficult or camera acting? ओके मैम बताएंगे। आज जो हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना स्टेज पे, हमारे पास फुट माइक्स वगैरह आ गए हैं, तो थोड़ा सा बस यही प्रॉब्लम होता था स्टेज पे पहले, कि वो जो अकूस्टिक को लेकर प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, कि जब एक्टर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वॉइस को थोड़ा थ्रो करने में इशू होता था। अब वो भी रिजॉल्व जी हो गया है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप कैमरे के सामने कर रहे हैं या आप अपने वो एक्टर के सामने कर रहे हैं या कहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली वही है, अगेन मैं कहूंगी कि आपने ट्रुथफुली परफॉर्म करना है। आपका परफॉर्मेंस पहुंचना चाहिए जहाँ फोर्थ वॉल के जी बाहर पहुंचाना है या फोर्थ वॉल के अंदर जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तब। इसका यही है कि करेक्ट। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेज एक्टिंग एंड कैमरा एक्टिंग। सिर्फ एक डिफरेंस है, विच इज लाइक वही मैम ने बोला कि वो हमारी, शायद हमारी आवाज का डिफरेंस है। ठीक है, जब आप स्टेज पे हो तो वही, लेकिन अभी वो भी खत्म हो लाउड। चुका है, क्योंकि हम अभी ओके। भी, अब हम फुट माइक्स यूज कर रहे हैं, कॉलर माइक्स यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट डिफरेंट कि कोई कैमरा एक्टिंग या स्टेज एक्टिंग। हाँ, एक और है कि जब आप स्टेज पर हो तो आपको पूरा प्ले एक वन गो पे करना जी जी, मेरा है। इनफैक्ट दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली, कि और हाँ, और कैमरे पे यू कैन कट, यू कैन कट वही। एंड एडिट एंड एवरीथिंग, बट स्टेज पे तो मतलब यू जो बोल दिया वो बोल दिया, उसको आपको अपने आप ही कवर अप करना पड़ेगा, फंबल भी नहीं कर सकते हैं आप, भूल भी नहीं सकते हैं। ये चीज है, दैट इज द, So I think the stage is more difficult because you have to be more prepared and very very confident because दोनों सामने है में आपकी ऑडियंस। सलोनी, दोनों में चाहिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो दोनों क्योंकि चाहिए। थोड़ी सी टेक्निक्स जो होती हैं वो थोड़ा अलग होती हैं। स्टेज पे आप अच्छा ओके। बेफिक्री से आप घूम सकते हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर ओके। सकते हैं, कि आपके ब्लॉकिंग रखी होती है। डिजाइनिंग जी जो है थिएटर के प्रोडक्शन की ऑलरेडी हम 5-6 महीने कर लेते हैं। अभी क्या ओके होता है, अभी फिल्म्स वगैरह के लिए भी या मीडिया में जो काम करते हैं उसकी भी एक वर्कशॉप होती है। फिर कच्चा पक्का हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ ऐसे ऐसे करेंगे, फिर हम ओके। लोकेशन पे पहुंचते हैं। तो हाउ टू, एक बहुत सारी चीजें, जैसे कंफर्टेबल होना एक नई लोकेशन पे, लोगों के साथ कंफर्टेबल होना, जी बहुत सारे जी इंटरनेट पे आ रहे, आपकी प्राइवेसी है आपका, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो एक
शायद कैमरा की जो फील्ड है उसमें वर्क करते हैं। एक स्टूडियो परफॉर्मेंस होगी, एक आउटडोर शूट अलग होगा। जी तो जी वो जी उसमें जी। होने के लिए वो करना सीखेंगे आप तो यू विल बी कंफर्टेबल। तो दोनों के ओके, अपने 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 लिमिट्स हैं, प्रोज एंड पैरामीटर्स कॉन्स हैं, है। आपको पता होनी चाहिए अगर आप अच्छा, दोनों ही ओके फील्ड में। लेकिन ओके। कैमरा एक्टिंग या स्टेज एक्टिंग में कोई फर्क नहीं, एक्टिंग में कोई फर्क नहीं। एक्टिंग। बट मैंने ये सुना है कि जैसे जो थिएटर आर्टिस्ट है तो वो तो कहीं भी और कैसे भी एक्ट कर सकते हैं। ओके। मैंने सुना है, आई डोंट नो। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अगर मैं थिएटर में एक्टिंग कर रहा हूँ, राइट, जी और मेरी एक लाइन है, यहाँ आओ, इधर आओ, ठीक है, तो मेरी वॉल्यूम अप है। अब मेरे को इसी की जी आदत पड़ गई। अब जी अगर जी। मैं कैमरे पे एक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली जब मैं कैमरे पे एक्ट कर रहा हूँ तो मैं इतना जोर के बोलूंगा, तो वहां पे जो दादा बैठे होते हैं ना, वो कान पे लगा के शूट पे, वो कहेंगे इतनी जोर की मत चिल्लाओ, राइट, मेरा लग रहा है। जी तो जी जी जी। थिएटर एक्टर, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो कर नहीं सकता, बट थिएटर एक्टर या कैमरा एक्टर, ये पता होना चाहिए कि हम कर किस चीज के लिए रहे हैं, हमारा मीडियम क्या है। तो थिएटर एक्टर को ओके भी ये पता होना चाहिए कि अभी मेरा मीडियम चेंज हो रहा है। अभी ओके जो आवाज मुझे वहां तक पहुंचानी थी, वो मुझे बस इतने में ही हो जाएगा, राइट। तो ओके। ये भी पता होना चाहिए। वही है जी, बेसिकली, तो ये चीज। अवेयरनेस हम्म। अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे कितना कैसे एक्ट कर रहे हैं। ओके। तो कुछ प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है, बेसिकली आपको एक्टिंग आती है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ जैसे एक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम वही कैमरा जैसे है, तो कैमरा का फ्रेम पता है। अब पता है कि हम दोनों इस फ्रेम के अंदर हैं, राइट। अगर मैं बाहर जी हो जाऊंगा तो बाहर हो जाऊंगा, तो जी ये पता होना जी। चाहिए कि इतना ही फ्रेम है। वो नॉलेज होनी इतने चाहिए में। इससे। हाँ, ये चीज है, बाकी कोई डिफरेंस Okay, a lot of people have just joined in, so let's just say hello नहीं। to all of them. Uh, Hello, Bhaiya. Bhaiya is also there. Rohit Bhaiya is there. Hello. अच्छा प्लीज आप मेरे बच्चों का नाम ले दो, हर सेशन पे मुझे बोलते हैं मम्मा प्लीज से हाय टू शौर्या नवीर ओके, हाय हाय शौर्या। हाय शौर्या, हाउ एंड यू? एंड अवीर। एंड अवीर नवीन। अवीर अवीर अभी, अभी, अवीर। ओके ओके। आर दे वहाँ है वहां पर? नहीं वो बाहर, मैंने अभी यहाँ होते तो मैं आपसे बात नहीं कर पाती। वो दूसरे रूम में देख रहे हैं लाइव। ओके ओके, हाय अभी, हाय शौर्य। हाय। होप you enjoying the session. I'm sure they are. Okay, there is one Your question, mama sir. is I'm in very Mumbai. Sorry, Your sorry. mama is I very could. beautiful. Oh, thank you so much. Thank you so much. अच्छा क्वेश्चन है आपका सर, आई एम इन मुंबई। आई के बिराज है आई थिंक नाम उनका। आई वॉन्ट टू लर्न थिएटर आर्ट, आई एम अ मॉडल, सो व्हाट शुड आई डू very first? What is the first thing he should do? He wants to learn. Well, He's a join model. any theater group, join any theater group। बॉम्बे में बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, आप कोई ठीक है। रेकमेंड कर पाएंगे जो आपको लगता है यार गुड एंड नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो करें ना। आई नो। तो राइट, तो देयर आर मेनी ग्रुप्स। हाँ, बट वो देयर इज वन प्लेस जो बहुत फेमस है, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, पृथ्वी थिएटर। ठीक है, तो आप पृथ्वी यस। थिएटर पे जाइए, पियो। वहाँ पे थोड़ा चाय पीजिए, थोड़ा समय बिताइए, और वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे थिएटर ग्रुप्स के डायरेक्टर मिलेंगे। तो ओके। जस्ट ज्वाइन थिएटर ग्रुप एंड गो हैड। व्हिचएवर इट्स योर बेसिकली कॉल कि आप कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली थिएटर ज्वाइन कीजिए सबसे पहले एंड यू और आर गुड उसमें टू बस गो। ये देख लो कि यू आर ज्वाइनिंग, मतलब देखो एक ना सेल्फ एक विवेक होता है आपका, तो आपको पता लग जाता है कि आप राइट प्लेस पे ज्वाइन कर रहे हैं या जी कुछ गड़बड़ है। जी। तो मैं ना आपकी आपसे क्वेश्चन पूछने वाली होती हूँ और आप पहले आंसर दे दे, तो मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि कि कैसे पता चलेगा कि जो आपको सिखा रहे हैं गुरुजी वो यू आर मतलब सही ट्रैक पे आप जा रहे हो। क्योंकि अब मुझे अगर मैं बोलूं मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए मैं कहीं चले जाऊं, तो अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि कैसे क्या स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं। हाँ, तो अगर मैं देखो जाऊंगी ये तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सही ट्रैक है एंड आई एम डूइंग राइट।
सो सलोनी, यहाँ पे ये बात अगर हम कुछ टाइम पहले कहते, लेट्स से 3-4 साल पहले कहते, तो ये मुश्किल हो सकता था, बट आज की डेट में नहीं हो सकता। क्यों? ओके। देयर इज टेक्नोलॉजी। अगर जो भी आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपको जो भी उस ग्रुप का लीडर है, आपको उसका नाम पता होगा, तो यू कैन जी। ऑलवेज गूगल यू कि ओके। इन्होंने कितना नाटक किया है, क्या एक्सपीरियंस है। ओके। ठीक है, और ओके। कितना नाटक किया है खाली वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कितना एक्टिव है। कि कभी जी। कभी क्या होता है कि हमने शायद 8 साल पहले कोई नाटक किया हो और उसके बाद हम सिखाने में लग गए, ओ। राइट? तो वो भी आप चाहे वो कितना एक्टिव है, क्योंकि जो जितना ओके। एक्टिव होगा, है ना, तो वो उतना जी। अच्छा ये जो बेसिक प्रैक्टिस जी। में है लोग सीखिए। जी। जी। तो हर चीज में मतलब पूरे टाइम प्रैक्टिस चाहिए, जैसे। फेमस नाम के पीछे भी नहीं जाना है। फेमस जैसे कुछ लोग होते जी। हैं ना कि वो अपने प्रोफेशन, जैसे वो करेक्ट। एक्टर हो सकते हैं, लेकिन जी। जरूरी नहीं कि सिखाने वाले भी अच्छे हों। आई अग्री, बिकॉज काफी लोग खुद तो कुछ अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर वो सिखाना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। इट्स अ डिफरेंट आर्ट, मतलब वो चीज आप कैसे सिखाते हैं किसी को, वो अलग ही बात है। तो अच्छा, राइट। आपका। जी। या कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, तो आपका रिलेशनशिप कैसा होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ? आर यू वेरी फ्लेक्सिबल, या बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या फ्रेंडली है रिलेशनशिप? हाउ इज इट? ओके, इज देयर एनी स्टूडेंट ऑफ आवर्स हियर? इज देयर एनी सॉरी। स्टूडेंट? मैं देयर यहाँ आर लॉट ऑफ पूछना चाह स्टूडेंट्स रहा एक्चुअली। हूँ। है ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक। एक तो रविंद्र कुहार जी थे, एंड ओके, थे रोहित आई थिंक। भैया इज ऑल्सो देयर। तो मैं अगर हो सकता है ना, अगर हम झूठ बोले तो पकड़े जाए। 5 राइट। एलिमेंट्स है। आपके लिए क्वेश्चन आया, सर आपके थिएटर ग्रुप का क्या नाम है? इज देयर अ ब्रांच इन मुंबई? 5 एलिमेंट्स थे। पर राइट, और ब्रांच है मुंबई में? हाँ, कुछ यहीं वाह। से बच्चे गए। हाँ, तो कुछ बच्चे गए हुए हैं और वो वहाँ करते हैं थिएटर। बिल्कुल। ओ वाह, सो यू कैन कांटेक्ट देयर 5 एलिमेंट्स करके। यहाँ पे भी, बॉम्बे में भी 5 एलिमेंट्स ही है नाम। बिल्कुल। तो यू कैन सर्च ऑनलाइन एंड यू कैन गो ज्वाइन इन। आई एम श्योर आप लोग भी आते होंगे मुंबई, तो आपसे भी मिल सकेंगे वो लोग। हम लोग थोड़ा कम जाते हैं बॉम्बे। पर थोड़ा ज्यादा आ जाइए, कोरोना जैसे ही खत्म होता है आ जाइए। यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं, और उनको बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा आपसे। मतलब आप ऐसे सेशन पे इतने अच्छे से मतलब सब कुछ बता रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो पता चल जाता है कि यू आर सच अ गुड टीचर। तो अगर आप सिखा रहे हो कुछ, तो उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूसरे को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, तो फिर कैसे करेगा? तो वही है, तो मैं वही क्वेश्चन पे मेरे को शर्म आ गई वैसे थोड़ी सी। राइट। तो जो क्वेश्चन था कि हम अपने स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव कैसा जी करते, जी। आई थिंक पहले तो हम ये नहीं सोचते कि दे आर आर स्टूडेंट्स। ओके। ये हम दोनों का पहला वो है कि दे आर नॉट आवर स्टूडेंट्स, वी आर फ्रेंड्स। ओके। राइट। अगर मैं स्टूडेंट जैसे अपने किसी भी ज्वाइंट जो भी है उसको अगर मैं स्टूडेंट कहूंगा, तो एक कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ जाएगा कि आई एम अ टीचर। ओके। यस। राइट। बेसिकली वी आर नॉट टीचर, वी आर ऑल्सो लर्नर। क्योंकि वाओ। एक्टिंग एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी चीज है जिसको आप बंद नहीं कर सकते किताबें पढ़ के। ठीक है, तो जी। वो भी जी। हमसे कुछ सीख रहे हैं। तो हमारा यही बिहेवियर रहता है कि जैसे एक दोस्त के प्रति रहेगा कि अगर कुछ गलत किया तो हम मुंह पे बता देंगे, कुछ अच्छा किया तो तारीफ कम करेंगे, ताकि थोड़ा राइट। पर नहीं तो लग जाए। हाँ, हाँ, वही। तो बस एक फ्रेंडशिप वाली ही रिलेशनशिप में हम लीव वाह, करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो उस तरह से वो आपको बता भी सकते हैं कि क्या ठीक है, वो हाँ, हिचकिचाहट बेसिकली हट जाती है। क्योंकि ना जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तो डायरेक्टर का और एक एक्टर का कोलैबोरेशन ऑन अ फ्रेंडली नोट बहुत जरूरी है। हम ओके। कैसे क्या चाहते हैं उनसे, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर उनकी समझ क्या है, और हम उन्हें क्या समझाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को समझना। बहुत जरूरी है। करेक्ट। ओहो, नेटवर्क इशू है फिर से।
I Yeah, I think हाँ, net issue. That's okay. जी जी। it's fine. आपके स्टूडेंट्स है, आई थिंक फरदीन खान बोल रहे हैं, यस सर वी लव यू। और We love it. हु Love you इज too. हु इज मनु भी बोल रहे हैं। ये क्यों नाम रखा है Yeah. हु इज मनु? क्या हमसे पूछ रहे उसी हु इज मनु। हमें क्या मालूम कौन मनु है? हु इज मनु? हमसे बोलो यस कि एसआर के कौन बताएंगे, शाहरुख कौन है, बट हु इज मन्नू, बट हु इज मन्नू? आई लव यू सर बोला उन्होंने वैसे आपको। या हाय वी सादिया, आल्सो हाय अमित, हाय सलोनी। ओके, सो फ्रेंडली रिलेशनशिप है सो दैट। अच्छा, डायरेक्टर्स जैसे थिएटर में तो थिएटर में भी होते हैं, आई एम श्योर, जो डायरेक्ट कर रहा है प्ले को। तो इज देयर अ डिफरेंस? आपने तो थिएटर में भी प्लेस डायरेक्ट किए हैं और अदरवाइज ऑल्सो आई एम श्योर आपने किए हैं। जो अभी भी आपका एक शॉर्ट मूवी है जो we ऑन acted in ऑन it. यूट्यूब। सॉरी। We acted in it. A short film. उसमें Yes, yes, I have seen it. I have seen. I'm speechless. राखी मैम का तो ऐसे मतलब मुझे क्या वो एक थोड़ा सा ग्लिम्स है और वो इतना अमेजिंग है. I can't tell you. I mean, I was just so impressed. I was like, oh God, this is like completely, a different you. So I'm sure, guys, please नाम आप प्लीज एक बारी बता दीजिए सबको, so that at least वो ट्रेलर भी देखेंगे ना तो they'll be like so excited to watch you. तो आप प्लीज अपना एक बार मुझे पता है आपको पसंद नहीं है बट स्टिल आप प्लीज नाम बता दीजिए so that people see it and I'm sure they learn a lot of things from that right. trailer So, also. right now अभी हमारी 2 फिल्में डिज्नी हॉटस्टार पर हैं। एक है आपका अमिताभ, विच इज आई थिंक कुमुद मिश्रा। तो कुमुद मिश्रा के साथ वो है। दैट फिल्म इज डायरेक्टेड बाय पल्लव गोयल। और सेकंड फिल्म इज अंतिम पार्ट, जो अगेन हॉटस्टार पर है। और थर्ड वन इज पांचाली, जो अभी अमेजन प्राइम यूएस यूके में रन कर रही है अभी। और वाओ एंड पांचाली में जितने स्वीट अभी हम लग रहे हैं, जितने पॉजिटिव हम लग रहे मैंने हैं, देखा है. I have seen it. I have seen it. It is just amazing. Guys, I'm going to leave a link in the description. I have a YouTube channel, so please subscribe and I will leave a link. And you can watch all their movies out there and I'm sure you will love it. वो trailers है मेरे पास जो भी links में भेज दूंगी and you can watch it. It is just amazing. मुझे तो बहुत ही मजा आया देखने में. So please watch it. अच्छा, okay. अच्छा, ऐसा भी होता है बहुत सारे न्यू एक्टर्स जैसे ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत फंबल कर देते हैं कई बारी डायलॉग्स बोलते हुए एंड देन दे बिकम वेरी नर्वस. तो आप वो कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कोई भी न्यू आया है आपके पास और अब वो बोलता है कि भाई यू पूरा अच्छे से सब कुछ उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है और जब स्टेज पे जाते से स्टेज फ्राइट हो जाती है और वो एकदम से फंबल करने लग जाए एंड यू ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको तो पता चल ही जाएगा कि बस नर्वस हो गया है ये इंसान. तो क्या करें उस टाइम पे? आप क्या करते हैं उस टाइम पे? क्या करना चाहिए? ये हमारे बच्चों के साथ तो ये हुआ नहीं है कभी भी. सीरियसली? हाँ, रिहर्सल्स होती है. टचवुड मतलब वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो वेल प्रिपेयर्ड जाते हैं वो. अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जिनकी आप बात कर रही हैं कि अक्सर जो नए, आपने पहले ही अपना आंसर दे दिया उसमें कि वो नए हैं. तो क्या होता है कि एक होता है कि जैसे आपको 4 लाइनें मिली हैं तो उसको जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी कि आप क्यों बोल रहे हैं वो, तो फंबल आएगा ही आएगा. वोकैबुलरी इश्यूज होंगे तो फंबल हो जाएगा क्योंकि आपको दूसरा शब्द नहीं मिलेगा उस टाइम. एक तो आप पहले ही, दूसरा आपने पढ़ा कम है. जितना आप बकबक करते रहते हैं वो और जितना आप रीड करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जबान पे वर्ड्स रहते हैं, आपके ब्रेन बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है किसी भी शब्द को. फंबल नहीं होता है क्योंकि वो फटाक से अगर कुछ हुआ 1 सेकंड को सोचेगा, वो नया शब्द डाल देगा. लेकिन वो कंटिन्यू करेगा चीज को, तो वो उस प्रोसेस में रहेगा. तो नए बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई है कि ये लाइन मेरे को हे वायर कहाँ से आ गई. मुझे ऑडिशन के लिए 4 लाइनें मिल गई हैं, अब मैं क्या करूँ.
याद कर लेगा, रट लेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। तो रटना जी। इज नॉट लाइक अ मैथ्स You चीज can't express. You can't express. हाँ कि And इट्स लाइक अ मैथ्स की जो मैं कह रही हूँ कि भाई आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। वो रटन विद्या वाला खेल नहीं है। सेकंड चीज, तो जब आप साइकिल चलाना सीखते हो या गाड़ी चलाना सीखते हो, जब तक आप ठोकोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। तो जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो वही चीज है, एक्टिंग में भी वही चीज है, राइट। गलतियां एंड जरूरी ऑलवेज हैं। You learn. एंड ऑलवेज थोड़ा सा नयापन हमेशा रहना चाहिए, थोड़ा सा nervousness हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन जी। अगर आप बिल्कुल, चाहे आप 10 साल थिएटर करो या आप 20 साल एक्टिंग करो या जो कुछ भी करो, जब तक आप नर्वस नहीं होगे तब तक अपना बेस्ट शायद नहीं दे पाओगे, ऐसा हम सोचते हैं। थोड़ा सा नर्वसनेस इज ओके। वेरी, पर थोड़ा बहुत, बट देन जैसे हो जाता है कई लोगों को, ऐसे हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, माय गॉड अब मैं क्या करूं। तो आई थिंक वो आई एम श्योर उनकी प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है मोस्टली। दैट्स व्हाट जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से मुझे समझ आ रहा है प्रैक्टिस कि इज, आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो यू विल नॉट फंबल, चाहे नए हो या पुराने हो। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। तो वही है। ओके, एक क्वेश्चन है, anyone can act, ये तो हमने पूछ लिया था। Thank you for motivation. My brother is good actor, but he got rejected from NSD, and he was so depressed after that, and I kept motivating him. ओके, How क्या 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 नाम क्या है इनका जिन्होंने पूछा? आशुतोष तो आशुतोष Ashutosh, your brother was good actor, but he was rejected from NSD, right? You जी। know one thing, Ashutosh, Manoj Bajpayee is good actor, and he is rejected from NSD 3 times. Oh my god. And Mr. Bachchan was a good actor, but he was rejected from All India Radio. Oh yes. So, His voice was rejected. अगर आप अपने से नहीं डरना है। अपने भाई तक ये चीज पहुंचाना चाहें तो ये बोलिए उसको कि रिजेक्शन इज, वो स्केल नहीं है कि आप कितने अच्छे एक्टर हो। रिजेक्शन स्केल नहीं हो सकता, वो आप खुद हो कि कहाँ तक आप जाओगे या क्या आप करोगे। दैट इज द थिंग। तो इसी कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है, किसी और का है, तो फैक खान वो पूछ रहे हैं कि सर हाउ डू वी स्टे पॉजिटिव आफ्टर रिजेक्शन। वही मैंने जवाब दे दिया कि अच्छा कहाँ पे रिजेक्ट किया। जैसे फॉर इसको इस तरीके से लो कि कोई भी मिठाई है, ठीक है। जी। अब जैसे मेरी फेवरेट मिठाई है गाजर का हलवा, ठीक है। तो अगर मैं गाजर का हलवा खा रहा हूं तो मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को गाजर का हलवा पसंद हो, जी। ठीक है। तो आप एक जगह रिजेक्ट हुए हो सकता है कि उसको आपका मिठाई या आपका जो तरीका है वो पसंद ना आया हो, या उस पर्टिकुलर करेक्टर में आप फिट नहीं हो, ये है रिजेक्शन। लेकिन आप इसको लेके बैठ जाओ तो ये नहीं है, दिस इज नॉट। कीप लर्निंग। रिजेक्शंस तो बेसिकली जिंदगी में आएंगे ही, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आपको अपना दिमाग पॉजिटिविटी इज अ गुड थिंग, लेकिन हमको ये भी जानना है कि हमारा रिजेक्शन क्यों हुआ है। तो Correct. आपके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करो, अपनी उस पे काम करो, क्राफ्ट पे, अपनी आर्ट पे। रिजेक्शन तो होता रहेगा यार, चलता है, वो चलता है, लेकिन जिंदगी आपने में सीखना है कि आप रिजेक्ट हुए, आप उस रिजेक्शन से सीखे क्या, ये इम्पोर्टेंट। जी। इफ यू आर यू हैव टैलेंट तो आई एम श्योर आप आगे बढ़ेंगे ही। आप कई लोग बोलते हैं कि इसका लक अच्छा था इसलिए ये बढ़ गया, वो चलो ठीक है, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट आई एम श्योर अगर आप में टैलेंट है और आप सीखने की आपके पास आप सीखना चाहते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू। कोई भी रिजेक्ट करे, आप अच्छा, बस ये आशुतोष जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ही इज ग्रेजुएट, आशुतोष के ब्रदर जी। तो उन्होंने एनएसडी मतलब ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स किया है उन्होंने। आई एम नॉट श्योर। आशुतोष आप बताइए प्लीज, आपके ब्रदर ने ग्रेजुएशन की है कि नहीं की है? ग्रेजुएशन तो की होगी, एमएसटी का है। आई एम श्योर। जी जी, तो लगता है, आई थिंक सो। देखिए, ऐसा है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर मास्टर्स है,
तो थिएटर। वो अच्छा। मास्टर्स इन थिएटर है। अगर आप एनएसडी में नहीं हो पाया है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कीजिए, जो कि चंडीगढ़ में भी है और बॉम्बे, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र। तो वो स्टेट्स में है, तो आप वहां पे ट्राई करिए। और एनएसडी इज अ डिप्लोमा एंड मास्टर्स इज अ डिग्री। सो यस। और आप यकीन मानिए कि जो उन कॉलेजेस में जो पढ़ाने जाते हैं वो एनएसडी की फैकल्टी ही जाती है, बिकॉज आई हैव डन मास्टर्स एंड जो हमको पढ़ाने आते थे हमारे सर वगैरह वो सारे एनएसडी के थे। अंकुर सर हमें पढ़ाने आते थे, बापीदा हमें पढ़ाने आते थे, और सुरेश भारद्वाज थे, वो लाइटिंग पढ़ाने आए हैं डिजाइन के लिए। सब एनएसडी की फैकल्टी ही आती थी। और जो हमारे गोविंद राजू भारद्वाज सर हैं, उन्होंने मतलब वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल की। हम एनएसडी के फैकल्टी बेस्ट कहते हैं ना, तो वो हमारे लिए थी वहां पर। वही है कि रास्ते और भी है, सब जुड़ा हुआ है, एनएसडी मास्टर्स वगैरह सब जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो पाया तो आप मास्टर्स के लिए ट्राई करिए। तो हारने की तो कोई बात ही नहीं है। अभी सोल्यूशन मिला, मिल गया। लिखा हुआ है ही इज ग्रेजुएट। बहुत ही बड़ा अच्छा सजेशन है कि बहुत सारे जगह है, कहीं भी आप जा सकते हैं सीखने के लिए। तो जैसे वो 3 इडियट्स में मूवी में था कि किसी क्लास से निकाल दिया तो क्या हुआ, दूसरी क्लास में जाके सीख लो। ज्ञान तो हर जगह बट रहा है। बहुत सारी जगह है और अच्छी जगह है और अच्छी जी। जगह, ये चीज। अच्छा, आजकल सिंस कोरोना का सीजन है, आई वुड से, तो क्या करें? मतलब थिएटर्स नहीं जा सकते सीखने के लिए, और लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दे वांट टू लर्न। तो इज इट पॉसिबल ऑनलाइन, वर्चुअली ऑनलाइन क्लासेस, जैसे बच्चों की जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो इज इट पॉसिबल टू लर्न एक्टिंग ऑनलाइन? एक्टिंग नहीं सीख सकते ऑनलाइन, लेकिन आप अपना ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो नींव भी खोदनी पड़ती है, तो तो वो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी अपने बहुत सारे ऐसे एजुकेशन वाले जो वीडियोस डाले हैं जो आपको बिल्कुल बेसिक सिखाते हैं, तो वो आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग वॉलंटरीली, मैं कह रही हूँ दिग्गज, थिएटर की दुनिया के दिग्गज, दे आर डूइंग देयर वीडियोस, वेबिनार्स हो रहे हैं, वो आप अटेंड करिए। अभी तक मेरे ख्याल से कुछ तो चल रहे हैं, और जिन्होंने किए हैं वो ऑनलाइन इनके रिकॉर्डेड यूट्यूब पे हैं। इनफैक्ट एनएसजी का जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑफिशियल इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स है, उन्होंने अपनी वेबिनार्स किए, तो वो आप देखिए। बेसिक सीखो, बेसिक सीखने का टाइम। बेसिकली ये हम इसको ऐसे कहेंगे कि कोरोना पीरियड जो है वो लर्निंग पीरियड है ना, कि वो आपको बेसिक लर्न करने को मौका मिलेगा। जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी और भी बहुत सारा चीजें पढ़ी, तो वो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का पीरियड है। उसके बाद जब ये चीजें नॉर्मल हो ही जाएंगी बहुत जल्द, तब आप उसको यूज कर सकते हो। वो बेसिक को लर्न किसी को ये चीज हमेशा तो रहने वाली नहीं है। तो जब भी ओपन होगा सब कुछ, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट, एक थोड़ा सा बेस होगा। आपको पता होगा कि हमको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना चीजों का, नेक्स्ट लेवल। अच्छा, तो क्या आप बेसिक, अगर आप बोलते हैं, जैसे आप बोले बेसिक, तो क्या होता है बेसिक लेमैन के लिए? जैसे मैं भी हूं, तो अगर मैं आपसे सोचूं कि अच्छा क्या बेसिक क्या सीखूंगी मैं, वेबिनार आ गया, तो क्या ऐसा क्या मतलब ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे? ओके, जैसे अब बेसिक चीज है, अगर हम एक्टिंग की बात करें तो इसमें एक बहुत बेसिक चीज है डिक्शन, कि जो हम बोल रहे हैं वो साफ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वो प्रैक्टिस आप ऑनलाइन क्लासेस हैं कि हाउ, कैसे आपने अपने डिक्शन को काम करना है। अब डिक्शन तो आप अकेले बैठ के सुनकर देखकर कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसे बेसिक में आप आ जाओ, जैसे इंडियन कल्चर में हम जाए तो देयर इज वन थिंग, जो नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उस वीडियोस में आपको पता लगेगा कि नाट्य शास्त्र में या किसी भी तरीके से इमोशंस क्या है, कौन से इमोशंस हैं। अब जैसे बहुत कम लोगों को शायद पता होता है जब वो आते हैं कि इमोशंस कितने होते हैं बेसिकली, या रस जो है वो कितने रस हैं या कितने इमोशंस हैं। तो ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रस है ये हास्य रस है, रौद्र रस है, एंगर है, हैप्पी है, या सरप्राइज, ये सब बेसिक।
अभिनय के प्रकार है ना, अभिनय के प्रकार हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजीज हैं, तो वो आपको मेथड्स पता होने चाहिए। तो वो जी बेसिक जी। जब आपको पता होगा ना, तो ये सब है बेसिक। और जब आप तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एग्जैक्टली कि आपको पता होगा कि यार ये चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग के बारे में हम कहें कि बहुत सारे लोग हम आज हम कहते हैं कि फला एक्सरसाइज करो, या हमने एक चीज बोली जी। एनिमल एक्सरसाइज करो। एक ओके एक एक्सरसाइज है एनिमल एक्सरसाइज। तो एनिमल ओके। एक्सरसाइज बहुत सारे लोगों को शायद पता ही ना हो, लेकिन मुझे जब नहीं पता। आप जब आप बेसिकली पढ़ोगे, जब आप एनिमल एक्सरसाइज को गूगल करोगे या पढ़ोगे, तब आपको पता लग जाएगा ओके दिस इज एनिमल एक्सरसाइज, और एक्टर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब में ओके बेसिक, ये सब ओके। चीजें चीजें हैं जो आपको हेल्प करें। बेसिक चीज है। तो दैट्स हाउ, अगर आप जाते हैं आफ्टर कोरोना थिएटर ज्वाइन करते हैं, तो देन यू वोंट बी ब्लैंक बेसिकली, पर आपको बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कुछ पता होगा। ओके, सो नाउ आई नो व्हाट इज बेसिक एंड विच इज हम्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। कितनी सारी चीजें हम लोग वेबिनार्स, ये जो वेबिनार्स है और ऑनलाइन आप लेते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स या क्लासेस? पहले ले रहे थे, अभी आई थिंक महीने भर से बंद कर दिया है। शुरू शुरू में बहुत कुछ लिया है, और हमने व्हाट्सएप सॉरी यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस डाले हैं, बहुत ओके बेसिक वीडियोस डाले हैं। यू वांट कि हम वो भी शेयर कर देंगे, तो बहुत बेसिक प्लीज। वीडियोस है, राइट। ओके तो ग्रेट। हाँ, तो वो हमने डाले हैं, पहले लेते थे, अब तो। और आई थिंक परसों से हम लोग फिजिकल रिहर्सल स्टार्ट कर चुके हैं, एटलीस्ट ओह 3 दिन। वाओ, ओह वाओ। सो ऑनलाइन इम्पॉसिबल है बिकॉज अब तो फिजिकल आपने स्टार्ट हाँ, कर दिया है। अब हम ओके, फिजिकल विद ऑब्वियसली विद दैट सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन। आई नो, बट कितना वो हैम्पर करता है आपको एक्टिंग में, बिकॉज मास्क है और वो एक्सप्रेशंस कैसे आप टेक, कैसे कैसे करेंगे मुझे समझ, क्योंकि कभी हाउ तो विल यू हटेगा। एक्सप्रेस सिर्फ आंखों से? हाँ, बेसिकली एक्टिंग आंखों से ही होती है। अच्छा, हमारी आंखें कभी बस। झूठ नहीं बोलती है। अगर हमारी सिर्फ आंखें देखें, तो आंखें झूठ नहीं बोलती। आज मैंने लगा रखा चश्मा कंजक्टिवाइटिस की वजह से। यू कुड हैव ओ सीन रियली? माय राइट। तो बहुत सारे ऐसे, अच्छा आंखों की बात की सलोनी, अगर मैं जी बहुत अच्छे अच्छे पुराने एक्टर्स का नाम लूं, जैसे दिलीप जी साहब है या बच्चन जी साहब है, जी जी। आप उनको देखो वो सिर्फ आंखों से बहुत कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। बोलने की जरूरत ही आंखें, नहीं। हाँ, तो वो चीज है, तो वो और कभी ना कभी मास्क भी हटेगा। हाँ वो तो हटना ही पड़ेगा, हम हटाते रहेंगे। अच्छा एग्जैक्टली। सर, मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछते, बिकॉज हमारा सेशन खत्म होने वाला है, तो मैं आई एम गोइंग टू क्विकली आस्क यू। इतनी जल्दी। आप जी, हाँ सीरियसली मुझे भी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ, मैंने अभी टाइम देखा तो वी आर जस्ट, इट्स जस्ट गोइंग टू गेट ओवर। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपको लगता है, जैसे अभी आपने नाम लिया दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन जी, इनकी जो एक्टिंग में इनकी जो एक्टिंग थी और अब आज जो है हमारी जो अभी की जो पीढ़ी है एक्टिंग की, इज देयर अ डिफरेंस, और या वो डिफरेंस जरूरी है, या व्हाट इज इट, कुछ फर्क आया यहाँ है पे, एक्टिंग में? हाँ वही कि यहाँ पे देर इज नो डिफरेंस। इनफैक्ट मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा कि जब कभी कभी, जैसे दिलीप साहब है, तो दिलीप साहब जो है, हम उनकी फिल्में देखते नहीं है, हमको लगता है कि पुरानी फिल्में, जी मुझे लेकिन बहुत अच्छा ऐसे, लगा। हाँ, लेकिन आजकल के नए बच्चे थोड़ा कम देखते हैं। तो अगर आप दिलीप साहब की परफॉर्मेंस देखें, तो वो अपने आप में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, राइट। वो सिर्फ आई एग्री। देखकर आपको जी हाउ पावरफुल ही इज। और वो उस पीरियड में रियलिस्टिक काम कर रहे थे, मतलब वो उस पीरियड में जब पारसी थिएटर का जमाना था, उस टाइम जी पे उन्होंने मेथड एक्टिंग है, जो रियलिस्टिक काम है वो किया। जी। तो देयर इज नो डिफरेंस। आजकल के बच्चे बहुत, आजकल के जितने भी एक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो कोई वो दो राय नहीं है उसमें। वही है, दे फुल आर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा, एक तो बचपन से उस माहौल में है। बहुत सारे जी, जो एक्टर्स हैं अपने घर वालों वो को तो उन्होंने देखा है ना, अच्छा वो भी आप है, मुझे, है? अच्छा तो आप मुझे अभी फटाफट से बताओ, व्हाट इज योर से ऑन नेपोटिज्म? हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। ओ माय गॉड। ओके, मैं 26 में सेकंड में इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। मेरी हलवाई की दुकान है, फिर से हलवाई की दुकान। हलवाई की दुकान, एक सेकंड, अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। मेरी हलवाई की दुकान है।
तो और तो मैं अपने बेटे को ही उस पे बैठाऊंगा ना, या बाहर से किसी को?